আমরা তাকে পেয়ে ভীষণভাবে আপ্লুত। সন্ধ্যে থেকে আমরা তার অপেক্ষায় অধীর হয়েছিলাম। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এই মুহূর্তে যাচ্ছেন মাতৃমূর্তির সামনে, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন, প্রদীপ প্রজ্বলিত করবেন এবং সূচনা হবে 46তম বর্ষের দাপরসাবাদের মাতৃর কাছে দুদিকে কাজ খুব সুন্দর। ঠিক আছে। জানি তো जगदात्री माई की जय, जगदात्री माई की जय। সংস্কৃত তোমরা একা জানো না, আমরাও একটু একটু জানি। আমি আমার এখানে উপস্থিত সীতানাথ ঘোষ, আমাদের পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের, চন্দন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ আগরওয়াল, সন্দীপ কুমার আগরওয়াল, মনোজ কুমার জালান, পবন মোদী, গৌতম গুপ্ত, সমীর পাল সহ আমার সহকর্মী এবং সতীর্থ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মলয় ঘটক, সুজিত বোস, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মিতা বক্সি, শশী পাজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চক্রবর্তী সহ সকলে এবং উপস্থিত অনেকেই নিচে বসে আছেন, তাদের সকলকেই এবং বড়বাজার মজদুরদের থেকে শুরু করে, বিজনেসম্যান থেকে শুরু করে, ট্রেডার্স থেকে শুরু করে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দিওয়ালি গেছে মাত্র 2-3 দিন হলো, এখনো আলোর রোশনাই, আলো জ্বালাচ্ছে। এর মধ্যেই জগদ্ধাত্রী পুজোর আগমন এবং আগামী 4 তারিখ থেকে পুজো শুরু হবে। 6 তারিখে অনেক সময় অনেকে 6 তারিখেও পুজো করে, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী একসাথে, বাট 4 তারিখ থেকে শুরু হবে। এর মধ্যেই 2 তারিখে আবার ছট পুজো আছে, সন্ধ্যেবেলায় ঘাটে যেটা পুজো হয়, আর 3 তারিখ ভোরবেলা আছে। সুতরাং পুজোর মরশুম, উৎসব চলছে। উৎসব শুরু হলে উৎসব থেমে থাকে না, সবার উৎসবই আমাদের উৎসব। এই মানসিকতা আমাদের সকলের আছে এবং থাকবে। মনে রাখবেন, উৎসব যখন শুরু হয় আমরা কেউ কেউ ভাবি ওটা ওর উৎসব, ওটা ওদের উৎসব, ওটা ওনার উৎসব, কিন্তু আমরা সেটা ভাবি না। বাংলার মাটি, কলকাতার মাটির একটা অন্যরকম স্বাদ আছে। কলকাতা যেমন কসমোপলিটন এরিয়া, বাংলাও কিন্তু মনে রাখবেন বাংলার আরবান
সেমি আরবান মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াগুলো কিন্তু কসমোপলিটন এরিয়া বলেই বিখ্যাত, এবং সেখানে সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব জাতি, সব রাজ্যের মানুষ আমরা কিন্তু ভারতবর্ষের এখানে আমরা বসবাস করি, এবং এটা আমাদের গর্ব। বসবাস করি শুধু না, শান্তিতে করি। আর প্রত্যেকের উৎসবই আমাদের প্রত্যেকের উৎসব বলে আমরা মান্যতা দিই। এখানে কার কোন উৎসব এটা আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি এটা আমাদের সবার উৎসব। আগে বাংলায় বলতো 12 মাসে 13 পার্বণ, আর এখন আমরা বলি বাংলায় 365 দিনে 366টা উৎসব। এমন কোনো দিন নেই যে আমাদের উৎসব হয় না, অর্থাৎ সবকিছু মিলেমিশেই হয়। পৌষ মেলা যে হয় সেটাও লোকের কত মেলা করে উৎসবের মতো করে। ধরুন একটা বিজ্ঞান মেলা হয়, সেটাও কিন্তু একটা মেলা হয়। জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো যেমন আমরা কালী পুজো করি, দুর্গা পুজো করি, জগদ্ধাত্রী পুজো করি, সরস্বতী পুজো করি, লক্ষ্মী পুজো করি, গণপতি পুজো করি, ছট পুজো করি, বড়দিনও আছে, ঈদও আছে, সব আছে। গুরু নানকও আছে, গুরু রবিদাসও আছে, ইভেন পোঙ্গল পর্যন্ত আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ার অনেক লোক আছে। ওনম উৎসব, পোঙ্গল উৎসব, সেগুলোতেও আমরা কিন্তু পার্টিসিপেট করি, এটা আমাদের গর্ব। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই পুজোটা খুব যত্ন করে আমি সেখানেই ছুটে যাই যেখানে মায়ের ডাক যত্ন করে মানুষের হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয়। এবং মাকে আমি যখন পুজো করি বা ডাকি, অন্তর দিয়েই করি। যখন যেখানে যাই সেটাই অন্তর দিয়ে করি। কিছু কিছু লোক আছে নিজেরা কিছু করে না, দোষ ধরে বেড়ায় আর সমালোচনা করে বেড়ায়। ইলেকশনের সময় ধর্ম খেলে, আর তারপরে ধর্মকে হয় গুতোয়, নয় মারে, নয় ভাগাভাগি করে। আমরা কিন্তু সেটা করি না। আমরা সারা বছর, আজকেও যে কথা বলবো ইলেকশনের সময় সেই কথা বলবো। এটা কারা বলতে পারে? যাদের বুকের পাটা আছে, যারা মানসিকভাবে শক্তিশালী, এবং যারা মনে করে ইউনিটি ইজ দ্য স্ট্রেংথ, স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, তারাই বলতে পারে। আজ এক কথা কাল এক কথা বলার মানসিকতা যেন আমাদের না থাকে, এটা আমরা কখনোই করি না। কাজে প্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জগদ্ধাত্রী পুজো করবার জন্য। পোর্টের জমির যে প্রবলেম ছিল, মলয়রা অনেকদিন বলেছিলাম আগের বছরও মিটিয়ে দিয়েছে। এটা এখানকার মানুষের জন্য, তারা নিজেদের অধিকার ফিরে পেয়েছে, এটা একটা বড় ব্যাপার, আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। হসপিটালের জমিও আছে, সেটা অলরেডি বলেছি, আপনারা শুনেছেন, আমি আর দুবার করে বলতে চাই না। 3 ফিরাদ হাকিম কাল সকালবেলায় যে মজদুর ভাইরা আমার মারা গেছে, যে লেবাররা, তাদের ডেড বডি নিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিল হোল নাইট জার্নি করে। সে আজকে ফিরে এসে একটা কাজে গেছে, কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা। আমার আরেকটা প্ল্যান আছে, যদি করতে পারি, আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। পোস্তা বাজার এমন কনজেস্টেড আর এমন কনজেশন হয়ে গেছে, বড় বাজার বিশেষ করে। আমি ববিকে একটা প্ল্যান দিয়েছি যে আমাদের জমির মধ্যে একটা 10 একর জমি দেখে একটা মাল্টি স্টোর মার্কেটিং কমপ্লেক্স করতে, এবং সেখানে অনেক লোককে আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারি কিনা সেটা দেখবার জন্য, এবং সেটা অলরেডি চিন্তা ভাবনা চলছে। আমি এই জন্য আপনাদের বলছি, উৎসব হবে, কাজও হবে, সবকিছু হবে। আমি একসময় বড় বাজারে আসতাম, দেখতাম একটা ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত নেই। বড় বাজারে আগুন লাগালে একটা ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন নেই, বড় বাজারে একটা পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর এগুলো আমরা প্রত্যেকটাই আস্তে আস্তে করে দিয়েছি, এবং আপনাদের যে সমস্ত প্রবলেম আপনারা যখনই আমাদের কাছে এসছেন আমরা সলভ করেছি। এমনকি ট্রেডার্সদের যখনই যা প্রবলেম হয়, ট্রেডার্সরা আমাদের কাছে বললে আমরা কিন্তু সেইভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করি। এমনকি আমি নিশ্চয়ই ভুলে যাব না, যখন নোটবন্দি হয়েছিল আপনারা অনেকেই কাঁদছিলেন, আমায় কেউ ডাকেননি, কিন্তু আমি বড় বাজারে এসে খোঁজ নিয়েছিলাম যে কেমন আছেন আপনারা। আমি কিন্তু বড় বাজার এলাকা নিজে পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলাম, এই কারণে যে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে অ্যাকচুয়াল আপনারা কি ভাবছেন। আজকেও একটা সংকট চলছে, অর্থনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। সে মন্দা নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে হবে, কিন্তু যারা কাটাবেন, যাদের দায়িত্ব, তারা সকলে একটা ভালো রোল প্লে করবেন, এটা আমার নিশ্চয়ই তাদের কাছে আশা করা উচিত।
মা জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা করব সবাই ভালো থাকুন। আমি এখানে আসার আগে আমার খারাপ লাগছিল শুনতে যে 5 জন আমার মজদুর ভাই শ্রমিক যারা কাজ করতে গিয়েছিল কাশ্মীরে, আজকে নয়, তারা চিরদিনই করে, 10 বছর ধরে করে, তারা বাড়ি ফিরেও আসছিল, তাদের বাক্স প্যাটরা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের যেভাবে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে অ্যাবডাক্ট করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খুন করা হয়েছে, নৃশংস খুন। আমি রিয়েলি সরি, এ ধরনের মানসিকতা কেন থাকবে? আমি দেখেছি বিজেপির কোনো নেতা বলেছেন, আমি পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের কথা বলতে চাই না এখানে, কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা রিসেন্ট ঘটেছে, কারণ সব কসমোপলিটন সব মানুষকে নিয়ে আমাদের, তারা তুলনা করেছেন, হ্যাঁ ও তো হতেই পারে। এবং কেউ কেউ বলেছেন আবার ওরা লেবার, ওরা বাঙালি নয়। আরে গুজরাটি মারা গেলে আমরা গুজরাটি বলি না? রাজস্থানে কেউ মারা গেলে আমরা মারোয়ারি বলি না? বিহারের কেউ মারা গেলে, মুম্বাই থেকে বিহারি হাঁটাও হয়েছিল, আমরা বিহারি বলি না? তো বাংলার লোক মারা গেলে বাঙালি মারা গেছে, এই কথাটা বলতে তোমার লজ্জা কোথায়? বাংলায় পলিটিক্স করবে, বাংলায় ধর্ম নিয়ে আগুন জ্বালাবে, বাঙালি নন বেঙ্গলির মধ্যে আগুন জ্বালাবে, আর সত্যি কথাটা স্বীকার করতে নেই। আমার মনে আছে একটা ঘটনা ঘটেছিল, বিহারের চিফ মিনিস্টার এখানে একটা মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন, কই আমরা তো সেদিন তাদের কিছু বলিনি, পাঠাতেই পারে, কোনো অসুবিধা তো নেই, এটা আমাদের কালচার। সেটা নয়, আমাদের ওয়ার্কার তো রাজস্থানেও মারা গেছে আগে ওদের সরকার থাকাকালীন, গুজরাটেও মারা গেছে। কিন্তু বলুন তো, আপনাদের কাছে আমি একটা দুটো কোশ্চেন করছি, যদি আমি ভুল করি আপনার এভরি রাইট আছে আমাকে ক্রিটিসাইজ করবার বা ভুল ধরিয়ে দেওয়ার। ইফ আই এম রং, আই মে বি রং, আই এম নট কারেক্ট ইন এভরি টাইম, বাট আপনারা আমাকে বলুন, কলকাতায় আমার বিহারের ভাই বোনেরা থাকে কি থাকে না? ইয়েস অর নো? রাজস্থান থাকে কি থাকে না? মহারাষ্ট্র থাকে কি থাকে না? গুজরাট থাকে কি থাকে না? উত্তরপ্রদেশ থাকে কি থাকে না? মধ্যপ্রদেশ থাকে কি থাকে না? সাউথ ইন্ডিয়ান থাকে কি থাকে না? শিখ ভাই বোনেরা থাকে কি থাকে না? তো আজকে যদি কোনো ছেলে মেয়ে কাজ করতে যায় কাশ্মীরে, তারা আউটসাইডার কি করে হলো? দে আর ভেরি মাচ ইন্ডিয়ান, তাই নয় কি? আমার কনস্টিটিউশন আমাকে অধিকার দিয়েছে, আমি বাংলায় বাস করি, কিন্তু আমি সারা ভারতবর্ষে যেতে পারি আমার কাজের জন্য, আমার কর্মক্ষেত্রের জন্য, আমার শিক্ষার জন্য, আমার স্বাস্থ্যের জন্য। আবার জম্মু কাশ্মীরের লোকও এখানে এসে মনের আনন্দ ব্যবসা করতে পারে। বিহারের লোকেরা এখানে কাজ করতে আসে না। আমরা কখনো বলেছি তুমি বিহারি, তুমি ভাগ যাও? নেভার। এটা আমাদের কালচার নয়। এটা যাদের কালচার তাদের জিজ্ঞেস করুন। আজকে তুমি বলছো লোকাল নয়, তুমি ভাগ যাও, তো যেখানে ইন্ডিয়া মানেটা কি? এক একটা স্টেট আছে ভারতবর্ষে, তার নিজস্বতা আছে, কিন্তু সেই স্টেটে আবার অন্য স্টেটের লোকেরাও থাকে। এটাই তো আমাদের বিশিষ্টতা, যার জন্য আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, एनीबॉडी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन मूव एनीवेयर। हर लोग जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है? आप अगर छत्तू खाएंगे तो हम क्या कहेंगे आप छत्तू नहीं खाओ, ये बोलने का हक मेरे को नहीं है। अगर कोई चपाटी खाएंगे तो हम कभी नहीं कह सकते हैं आप चपाटी मत खाओ। अगर कोई लिट्टी खाने चाहते हैं तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि आप लिट्टी मत खाओ। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि आप बिहार वाला हो आप इधर से हट जाओ, आप यूपी वाला है आप इधर से हट जाओ, आप राजस्थान वाला है आप हट जाओ, क्या मध्य प्रदेश वाला है आप हट जाओ। हम कभी नहीं कह सकते इसी के लिए कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम इसको परंपरा का देश को मानते हैं। हर इंसान, हर आदमी, वो तो एक आदमी होता है, इंसान होता है। लेकिन जो चीज आज हो रहा है, फिर कहते हैं एनआरसी ले आएंगे, तो एनआरसी ले आने का मतलब क्या है? ए रहेगा वो नहीं रहेगा, ए रहेगा बी नहीं रहेगा, सी रहेगा डी नहीं रहेगा, जी रहेगा एच नहीं रहेगा। और जो कहता है खाली मुस्लिम के लिए हम किया है, तो पूछिए असम में 13 लाख हिंदू का नाम कैसे निकाल दिया है? कैसे निकाल दिया है?
और उसमें अब बिहार को भी है, उधर का भी 1 लाख लोगों का नाम निकाल दिया, हमारा गोरखा को भी है, उसको भी निकाल दिया, किसको नहीं निकाल दिया? तो इसका जरूरत क्या है? अगर आप लोगों को मैं पूछ सकती हूं कि आपका जन्म टिका 50 साल का आप ले आ सकते हैं, आपका माताजी का पिताजी का कितना का पास है? कितना आदमी का पास है? हमारा पास तो नहीं है। हमारा पिताजी का जन्म टिका कैसे मेरे का पास होगा? वो लोग तो मिट्टी का घर में जन्म लिया था। आज का तरह इंस्टीट्यूशन डिलीवरी थोड़ा ही पहले होता था, आज तो रिकॉर्ड होता है, रजिस्ट्री होता है। पहले बहुत सारे आदमी हैं जो गांव में जन्म लिया है, मिट्टी में जन्म लिया है। एक बात सोचना चाहिए, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को भी सोचना जरूरत है। खाली हिंदू मुसलमान करके भगा देने के लिए और डिवाइड एंड रूल करने से देश का नुकसान होता है। मुस्लिम मुस्लिम का माफिक है, हिंदू हिंदू का माफिक है, सिख सिख का माफिक है, जैन जैन का माफिक है। क्या है? आप बिहार वाला आप क्या खाना खाओगे वो तो आपको तैयार करना है। हम बंगाल वाला हम क्या खाना खाएगा ये हमको तैयार करना है। आप वेज है, कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, लेकिन जिसको जो मर्जी है वो अपन का पसंद होता है। लेकिन आज जो चीज हुआ है कि आपका फैमिली का बारे में भी इंटरफेयर होता है, घर तोड़ देता है, कम्युनिटी की तोड़ देता है। ट्रेडर्स लोगों को लिए क्या है, मजदूर भाई बहन को लिए क्या है? कितना मजदूर का नौकरी चला गया, बहुत सारे मजदूर आज भूखा मर रहा है, नौकरी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और आप मजदूर को देखता है और उसको गोली करके मार देता है। ये क्या इंसाफ हुआ है? ये कभी इंसाफ हो सकता है? इंसान के लिए, इंसानियत के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये चीज सोचना चाहिए। ये बड़ा बाजार एरिया है जिसमें हमारा हर कम्युनिटी का, हर कास्ट का, हर किट का आदमी रहता है। इसी के लिए कभी कभी सच बताना जरूरत होता है। इसी के लिए मैं 2-4 बात कहा है। इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए हम नहीं कहा है, लेकिन हम कहा है कि आने वाला टाइम में आप लोग को इसको देखना है, सोचना है। अरे सोचना है, अगर हमको शांति से रहना है तो हमको सबका साथ परंपरा मिलकर रखना है। चुनाव का पहले कुछ बात है, चुनाव का बाद में निकाल देना। जाइए, जाके देख के आइए, बहुत सारे जगह है, कितना लिंचिंग होता है, कितना ब्रूटल इंसिडेंट होता है, कितना एनकाउंटर होता है। हमारा इधर में नहीं होता है, तो झूठा बोलता है। झूठा बोलना, जिसको कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, वो झूठ बोलता है कि झूठ कहना जिसका आदत होता है। हमारा झूठ कहने का आदत नहीं है, हम तो रिकॉर्ड का माफिक बात करेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको आप लोगों को कहने चाहूंगी कि हम एक बात, हमारा एक वादा है, हमारा पार्टी का भी, हमारा गवर्नमेंट का भी। हम लोग चाहते हैं हर आदमी शांति से एक साथ में अच्छा से रहे, चाहे मजदूर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे खेत मजदूर हो, चाहे हमारा भाई बहन जो नौजवान हो, उसका भविष्य के लिए, बच्चा लोगों को भविष्य के लिए, मजदूर का भविष्य के लिए। आज तो पूरा सब बंद कर देता है। अरे खाना खाएगा कैसे मजदूर? पूरा बंद किया, कितना पब्लिक सेक्टर बंद हो गया है। आज बहुत सारे चीज चल रहा है। तो इसी के बारे में आप लोग भी सोचिए। आप लोग सोच के जो तैयार करेंगे वही तो आपका लिए सबसे बढ़िया है। हम बोलने से नहीं, आप चिंता करके देखिए। आज के जगद्धात्री পুজোর दिन আমি এই কথাগুলো বলছি এই কারণে, আমিও মনে করি আমার দেশ ভালো থাক। हम भी चाहते हैं हमारा देश अच्छा रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, एक साथ में रहे, एक कट्टा रहे, यूनिटी से रहे, एकता से रहे, संप्रीति से रहे, भाई बहन मिलके रहे, परिवार से परिवार अच्छा रहे। ये हम चाहते हैं जरूर। हमारा मजदूर अच्छा रहे, हमारा किसान अच्छा रहे, हमारा नौजवान अच्छा रहे, हमारा माँ बेटी अच्छा रहे। इसी के लिए ये बात हम कह रहा हूं। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো, মা জগদ্ধাত্রী আমাদের শক্তি দিন। আমরা দেবী পুজো করি। আমি নয়নার কথা শুনছিলাম, আমি আসছি বলে বন্ধ করে দিল যে মা দুর্গার আরেকটা রূপ হচ্ছে জগদ্ধাত্রী।
देखिए, हम बंगाल में दुर्गा पूजा करते हैं, कोई लोग कश्मीर में जम्मू में वैष्णो माता करते हैं, कोई आदमी गणपति पूजा करते हैं, हमारा देश में महाराष्ट्र में हम भी करते हैं, कोई आदमी माँ काली का पूजा करते हैं, कोई राज्यों में कामाख्या माँ का नाम पे पूजा होता है, तो कोई राज्य में शिव का नाम पे पूजा होता है। हर राज्यों में उसका तरीका से पूजा होता है, उत्सव होता है। मैं आज भी हमारा फेस्टिवल का हम कैलेंडर बना रहा था नेक्स्ट ईयर का, छुट्टी का हमको तैयार करने पड़ता है, हम खुद देख के करते हैं। जैसे आपको छठ पूजा है, वो सैटरडे पड़ा, नेक्स्ट डे संडे है, मैंने मंडे को भी छुट्टी दे दिया, इसी के लिए दिया कि संडे आपको घाट में जाना है कि नहीं है, मंडे को भी आपको जाना है, सैटरडे जाना है, संडे भी जाना है। तो एक दिन अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आपका माँ बेटी भी उपवास करता है, फास्ट करता है, मेरे को पता है। छठ पूजा का पहले 72 आवर्स कैसे उसको करने पड़ता है। तो 4 तारीख को हम छुट्टी दे दिया। हमारा दुर्गा पूजा का 4 दिन भी छुट्टी रहता है, थोड़ा हम ज्यादा ही दे देता है कि हमारा वर्कर लोग जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज लोग, उसको भी ब्रेन रिलैक्सेशन होना चाहिए। इसी के लिए हम मिला के देते हैं। जैसे हमारा एक स्ट्रैटेजी है, हमारा जो कंपल्सन होता है 365 दिन जो काम करते हैं, उसके लिए कभी कभी छुट्टी लेना भी जरूरत होता है। इसी के लिए आज जैसा हम आने वाला दुर्गा पूजा है, कब है? 22 अक्टूबर है। 17, 18 क्या है? सैटरडे संडे है। मैं उसको पकड़ के 19 तारीख से छुट्टी कर दिया, 31 तक हो गया। जैसे अभी भी किया था, हम अभी अनाउंस कर दिया। काली पूजा में भी देखो, काली पूजा होता है तो दिवाली होता है, भाई दूज होता है, तो एक दिन उसका अंदर हम दे दिया कि कभी कोई प्रतिवाद में भाई दूज करते हैं तो कोई द्वितीया में करते हैं। तो ऐसे हम आने वाला साल में भी कैलेंडर बना दिया। दुर्गा पूजा में जैसे हम 11 दिन टाना, हम ईद का भी 2 दिन छुट्टी दिया, हम छठ को भी 2 दिन छुट्टी दिया, आने वाला दिन भी दिया। आपका आने वाला टाइम में भी आपका दिन ऐसा ही पड़ा। तो इसी के लिए कि आप भी आपका फेस्टिवल अच्छा से करें, हम भी हमको फेस्टिवल अच्छा से करें। आज दुर्गा का पूजा में भी आप लोग सब शामिल होते हैं, तो आपका ही पूजा है। जगद्धात्री पूजा में भी हम शामिल होता है, इसी के लिए वो भी आप लोगों का पूजा है, हम लोग का पूजा है। हम गणपति पूजा में महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र निवास हॉल में, कि मराठी लोग करते हैं, बहुत सारे अच्छा से करते हैं। इसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम किसी को माँ दुर्गा रूप से पूजा करते हैं, किसी को माँ जगद्धात्री दुर्गा का और एक रूप है। कोई कहते हैं चामुंडा माँ, माँ काली का रूप है, कोई कहते हैं रुक्खा काली, छिन्नमस्ता काली, सिद्धेश्वरी काली, सर्वमंगला काली, भवतारिणी माँ, भुवन मोहिनी माँ, मनमोहिनी माँ, महामाया, महाकाली, जौरा काली, शारदा माँ, वैशालक्ष्मी, विष्णु माता, जय माता दी, कितना है, बहुत सारे हैं। माँ दुर्गा को भी जगदम्बा कहते हैं, कोई अम्बा कहते हैं, कोई जगद्धात्री कहते हैं। माँ आते हैं एक एक रूप में हर स्थान में पूजा लेने के लिए। दिल तो एक है, माँ भी एक है, माँ भी एक होता है, अम्मा भी एक होता है, मदर भी एक होता है, नाम पे फर्क है। कोई पानी को पानी बोलता है, कोई पानी को जल बोलता है, कोई पानी को वाटर कहता है, फर्क है ये। आप जब लिट्टी बनाते हो तो उसमें छत्तू का पूर देते हो, हम जब पीठा बनाते हैं पुली पीठा, हम नारियल का पूर देते हैं, कभी हम सूजी का पूर देते हैं। फर्क तो इसमें है और तो कुछ नहीं है। देखो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसका भी 2 हाथ है, हमारा भी 2 हाथ है, उसको भी 2 पाँव है, हमको भी 2 पाँव है, उसको भी 2 आंख है, हमारा भी 2 आंख है, उसको भी किडनी है, हमारा भी किडनी है, उसको भी गॉल ब्लैडर है, हम लोगों को भी है, उसको भी लिवर है, हार्ट है, तो हम लोगों को भी है। इंसान में कभी ऐसा फर्क नहीं होता। पहले तो सोचना चाहिए, जब कोई एक्सीडेंट होता है रास्ता में, खून का जरूरत होता है, तो एरिया का लोगों ने खून दे देता है जाके, कोई इंसिडेंट भी होता है तो
लेकिन सब खून जब ब्लड हम डोनेशन करते हैं ना, सब ब्लड बैंक में चला जाता है। जब एरिया में, क्षेत्रों में कोई ब्लड डोनेशन होता है तो पता होता है उसका नाम क्या है, राम है, उसका नाम रहीम है, उसका नाम पॉल्स है, उसका नाम नैना है। लेकिन ब्लड बैंक में जब खून जमा हो जाता है ना, किसी का नाम याद नहीं रहता है। हर आदमी का ब्लड बैंक में खून जमा हो जाता है। हिंदू का मुस्लिम में, मुस्लिम का क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन के सिख में, वो तो ग्रुप देख के मिला देता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि हमें बात कहे तो हमारा खिलाफ में क्या नहीं कहा गया है। हम पूरी का मंदिर में पूजा करने गया तो उधर में भी हमारा माताजी पिताजी को लेके क्वेश्चन किया है लोग कि हमारा माताजी पिताजी हिंदू नहीं थे, सब सर्टिफिकेट उसको पास लेना पड़ेगा, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। कोई मर जाने से अभी पुलिस डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं देता है, वो डेथ सर्टिफिकेट दे देता है, ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का है। कोई भी आदमी मर जाता है, শকুনি জানেন তো, ওত পেতে বসে থাকে, কখন কেউ মরবে আর সে খাবে। আর এরা শুধু বসে থাকে, কে বোমে মারা গেল, কে পার্সোনাল নিউমিটি মারা গেল, সব বলে দেবে আমার কর্মী। একটাও না, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া একটা সত্যি কথা বলার কাজ নেই। इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हम पूजा करते हैं प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, रिश्ता के बनाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, जगत का कल्याण के लिए, देश का कल्याण के लिए, राज का कल्याण के लिए, परिवार का कल्याण के लिए। अगर कल्याण के लिए हम पूजा करते हैं तो पहले दिल सच्चा होना चाहिए, दिल पवित्र होना चाहिए। अगर हम का दिल पवित्र है तो भी हम माँ को पूजा कर सकता है, नहीं तो हम नहीं कर सकता है। कोई देवता किसी को नहीं बोलता है जाओ उसको जाके मर्डर करके आओ, कभी नहीं। माँ तो अच्छा के लिए होता है। इसी के लिए जाने का पहले मैं भी प्यार से, मोहब्बत से आप लोगों को, हर इंसान के लिए और आप लोगों का परिवार का कल्याण के लिए, छठ पूजा भी अच्छा रहे। हम तो घाट में जाएंगे, हम 2 तारीख में भी जाएंगे घाट में। हर घाट में सुंदर बंदोबस्त भी कर दिया है, पुलिस को मैंने बोला पूरा देख लेने के लिए। और मेरे को क्या दिक्कत होता है, ये देखिए, अगर ग्रीन बेंच कोई ऑर्डर दिया, मैं उसको टकराने नहीं चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए किसमें क्या होता है। क्या अब बिहार में कह सकता है कि पटना में गंगा में छठ पूजा नहीं होना चाहिए? एक पत्र हमारे पास भी आया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। क्या आया? दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं होना है, सरस्वती पूजा नहीं होना है, छठ पूजा में घाट में नहीं होना है। तो कहा जाएगा? हमारे पास आया, मैंने 5-6 घाट नया बना दिया, लेकिन उसमें भी नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारा पूजा में भी ठाकुर को विसर्जन होता है, इमर्शन होता है, तो हम उसको पूरा सफा कर देता है। पहले बताओ आप लोग कितना सफा किया आपका राज्य में, बेनारस में कितना सफा किया? तो हमारा गंगा का बात पूछता है, आपका पास रुपया है, रिजर्व बैंक है, क्यों गंगा क्लीन नहीं करते? हम तो हमारा पूजा में विसर्जन भी करते हैं तो हम काठा में उठा के फेंक देता है। क्या करते हैं कि नहीं है कलकत्ता में? म्यूनिसिपैलिटी में करते हैं कि नहीं करते? अरे छठ पूजा में अगर पूजा करने जाएगा तो कुछ पड़ेगा तो हम भी उसको सफा करेंगे, लेकिन पूजा गंगा माई की पूजा है तो जाएगा कहां? ये हमको अभी याद पड़ा, हम लेटर देखा, इसी के लिए कहती हूं, कहां जाएगा? सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन बेंच तो उसका बात कहेगा, उसको हम इज्जत करते हैं। गवर्नमेंट से इसको लेना चाहिए कि देखो लाखों का लोगों का बात है, करोड़ों का लोगों का बात है। इतना हमारा देश में 130 करोड़ आदमी है, तो छठ पूजा करते हैं कम से कम 10-15 करोड़ आदमी। हमारा दुर्गा पूजा भी करते हैं 10 करोड़ आदमी, सरस्वती पूजा भी करते हैं। तो हम कहा करें, हम पूजा नहीं करें तो हमारा क्या इमर्शन नहीं हो तो हम कहा जाएगा? ये सब बात कहने से बहुत सारे बात आ जाएगा। हम सुदीप दा को कहेंगे कि हमारा जो लेटर आया उससे कॉपी ले लेना, कि कभी नहीं कह सकते कि हमने नहीं दिया। हमारा पास डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, इसी के लिए मैं कह रहा हूं। हमारा पास भी कभी कभी ऑर्डर होता है, हम जब पब्लिक ऑर्डर होता है ना
हम जाके फाइट करते हैं, हम उसको रिव्यू करने बोलता है कि देखो इसमें पब्लिक फंस जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोर्ट का जस्टिस हम मानते हैं। रविंद्र सरोवर में बंद कर देने के लिए कितना टाइम हमको ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेंच का भी ऑर्डर है। लेकिन आप हमको बताइए, हम तो कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ये हमारा मानना चाहिए। लेकिन अगर 10 लाख लोग किसी जगह पे जाएगा तो हम क्या उसको गोली चला देगा? ये हमारा काम है। इससे तो ज्यादा है बीजेपी तुम हमको अरेस्ट करके रख दो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकता है। हम किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं, हम करने नहीं देंगे। ठीक है, हम नया बना दिया, नया जगह में जाना है, तुम्हारा ऑर्डर है, नया जगह में जाना है। हम 14-15 बना दिया नया, हम तो घाट भी बना दिया, हम लाइट भी बना दिया। लेकिन कोई लोगों ने कोई जगह पे जाए तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकता है कि पुलिस डंडा लेके और बंदूक लेके उसको मार दे। बहुत सारे आदमी है जिसका पास कानून भी, उसको इंफॉर्मेशन नहीं है कानून क्या होता है। बहुत सारे गरीब आदमी हैं, दुखी आदमी हैं, जिसको पता भी नहीं चलता है किसी ने क्या बोला। हम एडवर्टाइजमेंट देने से भी नहीं सुनता, उसको पता नहीं है। तो कोई कोई चीज होता है जो चीज को ध्यान से, दिल से और फील्ड को सर्वे करके देखना चाहिए शांति कैसे बना रहे। हम शांति के लिए लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों को साथ माँ जगद्धात्री के আমরা সবাই বলি ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যেত্তম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহসধা নমস্তুতে। জয় মা জগদ্ধাত্রী মার জয়, জয় মা জগদম্বার জয়, জয় মা অম্বা দেবীর জয়। মা জগদ্ধাত্রী সকলকে শান্তি দিন, কল্যাণ দিন, সকলকে ভালো রাখুন। জগৎ মাতা তার নাম হচ্ছে জগদ্ধাত্রী, আর জগৎ পিতা নাম হচ্ছে জগন্নাথ। তাই মনে রাখবেন জগতের মাতা জগদ্ধাত্রী মা সকলকে ভালো রাখুন, সকলকে এক রাখুন, সকলকে সুন্দর রাখুন, সকলকে শান্তিতে রাখুন। আমি এইটুকু বলে, বিশেষ করে বড়বাজার প্রস্তাব মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমাকে, বাজার কমিটি আমাকে প্রতিবার ইনভাইট করে এবং এই জন্য আমার আপনাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আগামী দিন আমি যতদিন পারবো, যতদিন বেঁচে থাকব, যদি কেউ মেরে না ফেলে, তাহলে আপনাদের কাছে প্রতিবারই আমি আসব। তার কারণ এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় ভারতবর্ষের সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা একটা পার্ট। আমার সবসময় মনে হয় তুমসে লহরো লহরো সে উলঝো কিতনা তক চলোগে কিনারে কিনারে। আমি আপনাদের বারবার বলতে আসব, মনে রাখবেন আমরা যেটা বলি रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। रोशनी इंसान से होता है, चाँद से होता है, मानविकता से होता है, लेकिन डिवाइड करने से नहीं होता है। मोहब्बत प्यार है जो शांति से होता है, वो फोर्सफुली करने से नहीं होता है। इसी के लिए मैं आप लोगों को विनती करेंगे, सब एक साथ में रहे, अच्छा रहिए। और मेरे को जरूर पूजा का प्रसादी भेजना है, ठीक है ना। हमारा घर में भी जगद्धात्री पूजा होता है ना, আমি জানি আজকে না, পুজোর পরে অষ্টমীর দিন আমার না আজকে না, আমার জগদ্ধাত্রী পুজো আমার নিজের বাড়িতেও হয়, কালী পুজোও হয়, কিন্তু সেগুলো আমরা বাড়িয়ে বলি না। তার কারণ আমরা খুব লো প্রোফাইলে এগুলো খেলি, আমি এটা পছন্দ করি। ববি এসছে লাস্ট মোমেন্টে, আমি যেটা বললাম ওই 10 একর জমি, যেটা আমরা একটা প্ল্যান করছি যে এখানে আমরা যদি 10 একর জমি নিয়ে একটা মাল্টি স্টোর বিল্ডিং বানাতে পারি, মার্কেটিং কমপ্লেক্স বা একটা মার্কেট প্লাজা, তাহলে কিন্তু এখানে প্রচুর লোকের অ্যাকোমোডেশন হয়ে যাবে, প্রচুর বিজনেস বাড়বে, অনেকে দোকান পাবে এবং অনেক মজদুররা কাজ করতে পারবে। ঠিক তো? আমি সেইটা বলার জন্যই ববিকে ডেকে নিয়েছিলাম। ও সল্টলেকে ছিল, কাল সারা রাত মুর্শিদাবাদে গেছে, আবার ফিরে এসছে, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করেছে, আবার এসছে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম,
জয় বাংলা, জয় মা জগদ্ধাত্রীর জয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই আমাদের শ্রদ্ধা